This meeting is being recorded. Got it. Okay, so we'll be back to the presentation. Thank you. Thank you for that info box. Okay, so again, we'll be talking first. We'll be starting from Innovigyan, then we'll be talking about what would be the insights about the field of creativity. Then, as I mentioned, that creativity is providing a foundation for innovations, or even when you talk about anything having a high-end career, then obviously, as they mentioned, that you need to have the creative mindset to excel in the career. So we'll be focusing on its applicability to generate the novel ideas. Then the second topic of the session, which was smart studies. So in the end, we'll be taking a deep dive into the smart studies. And when you talk about the career counseling part, obviously people will be consulting the career counselors for the issues in terms of smart studies, because as we know, it's a world of competition. So one has to focus on the smart studies irrespective of whether they are preparing for the competitive exams or the academics. So it has to be the part of them. So let's start. Without wasting any more of your time, let's start with the introduction, or the very first part of what exactly we mean by the Innovigyan, or it will give you a little idea about what I do and why I think we need to focus on this topic more than anything else. Okay, so you guys are with me, right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. perfect. So when you talk about the Innovigyan, it's as its name suggests, it's innovation and science. And as I'm from the innovation background or an science background, so I do run this. So it's a place where science meets innovation to solve day-to-day problem. It's actually a platform also where we provide a lot of professional courses to upskill the students or the individuals or the professionals. So far, we have conducted a lot of workshops or seminars or courses, and we have so far we have trained 1,000+ students across Maharashtra itself in the last 1 year. This is some of the, we could say, a brief summary of a track of what we exactly have done, which is, I think, not of that much of use. And yeah, so here we can say there are a few of glimpses of awards and recognition which we have received, which actually make us worth to talk about some particular topics. When we say yes, we are the expert of that particular field. And these are the glimpses of workshops and interactions which we have conducted across multiple schools, colleges, institutes, or corporates, or any organizations, we could say. So online, offline, we have conducted a lot of sessions. And these are the main programs which we conduct: creativity and ideation program, which is our specialty, then the idea to innovation, ultimate innovation, the smart studies, and knowledge to course conversion. A lot of other programs are in the pipeline, but currently we are focusing on this. Okay, so that's a little about what we do. If you have any question about what else we do, or anything related to what we can help you with, you can ask us, or you can connect us back at any point of time. In the end, also will provide you my number and mail ID to connect you back. Okay. So are we clear till now? Can we move to the second or main topic? Yes, sir. Okay. So yeah, let's talk about the creativity. So before me bringing the concepts about the creativity and what you can say its applications and how exactly a different person with a different type of a creativity can excel in a different domain, I would like to know what you understood with the word creativity. So if you can just tell me what do you mean by the word creativity, it would be really good. Let's see what we have here and who all are ready to say. Yeah, I wanted to know what you mean, what you understand by the word creativity. Come on. We are not having a lot of time, so I think someone from you can start speaking of what they understand with the creativity. Till now, I'll take a sip of water. So it can be defined as new ideas, working on new Okay, ideas, great. and giving them a particular form or a shape or
Okay, so something which can help us you get the new ideas, right? You're saying? Yes. Perfect, perfect. Thank you. Thank you for that input. I think someone has texted in the chat. Okay, okay. Nazia has said to put ideas into reality. Okay, that's a work of an innovation. Because once you have got an idea, you put it into the work and you get that done into the innovation, and then the output would be the what do you say, the final product. Something which is before you start working in a real life और समथिंग मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि कोई कोई एक पर्टिकुलर आइडिया है जिस पर आपको काम करना है, तो उस आइडिया को पाने के लिए उससे पहले का जितना भी प्रोसेस है दैट आल्सो कम्स अंडर द क्रिएटिविटी. ओके, एनीवन एल्स हु इज हैविंग एनी अदर डेफिनेशन फॉर द क्रिएटिविटी? एनीवन? जावेद सर, तहसीन, अबू बकर, नुजहत, एनीवन? इम्तियाज भाई? Anything, because currently we're not judging anyone. अस्सलाम वालेकुम. एक्चुअली रिसेंटली मैं भी ज्वाइन हुआ है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं सर. ओके ओके, नहीं नहीं, डोंट वरी. फिर मैं एक बेसिकली एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बोला आपसे. जी हेलो जी सर जी, बताइए. यू आर ऑडिबल. हेलो, am I not audible or he is not audible to me? You are audible, sir. Okay, okay. I think he got disconnected. Okay. And then Sadia is saying ability to make new things using imagination. That's also great suggestion to have about creativity. Okay, we got Ahsan sir back. He's joining in between, so no problem. Okay. Anyone else to have any definition for creativity? कुछ भी जो आप सोच सकते हैं कि भाई क्रिएटिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या है, because we all are among those elite people which will be leading the community or will be leading a pack of individuals towards a brighter future. So we must be able to inform, or we must be able to put our words forward, right? So बताइए, if we have done with maximum of the answers, I think we can came back to the presentation. Okay. Yeah. So far whatever answers we have are almost correct. There is no doubt in that, because you guys are really good. That's for sure. Because maximum answers we got are like something by which you can generate new ideas, something by which you can use your imagination to generate new ideas. Someone said something by which you can convert your ideas into reality. Now let's see what does actually the makers of the definition says. Okay, so here it is. When you talk about creativity, this is the word which has been generated with the word saying creo. And the creo means to create something or to make something. Okay, anything, irrespective of that, just to make or create something. Now, what does someone is having mic on? कुछ करेंगे बीच में, बेंचो कुछ लेंगे, हलचल करेंगे, बाकी चीजों कुछ भी नहीं. See who else is having mic on. बुरा कराते वहाँ तुम्हारे भाई का, तुम्हारी बहन का. Yes, I think all of them are mute. Okay, sorry for the interruption, guys. Yeah, so as they mentioned, like we got a couple of interesting definitions, to the point definitions. We could say that the Dreidel is also saying that creativity is the capacity of a person to produce composition in terms of scientific compositions, you could say, or even formulation-based compositions or mathematical compositions, whatever you can say, the products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. And even when you talk about the innovations are nothing but the novel concepts which has been never been imagined or never been think by someone else, and it is been solving a particular problem of a society. So the outcome of an creativity would be the input for the innovation. Okay. So similarly, the Guilford is also saying the creativity is the capacity to produce ideas that are both new and useful through divergent thinking. Now, when we talk about the divergent thinking, it's like
the way by which you can think of a single problem to solve in a different ways. Like जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको A to B जाना है, अगर आपको A to B जाना है, या फिर समझ लीजिए कि अगर मैं बेहतर एग्जांपल दूं, अगर आपको A to Z तक जाना है, तो there are many ways by which you can go. Okay. So this is nothing but called as a divergent thinking. एक particular problem को आप कितने सारे तरीके से solve कर सकते हैं. It's called as divergent thinking. Now there are few myths I wanted to clear it out. Few of them are like, बहुत सारे लोगों को लगता है कि creativity is born, is like, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि people are born talented. No, it's not. Like few are might be, but it is not necessary that everyone has to be born with the talent. There are few things which can be cultivated with the way they are been upbringing. मतलब उनकी परवरिश, उनकी नशोनुमा और उनके आसपास के एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है when we're talking about their having some particular kind of a capabilities to achieve some particular targets. So that's why in the end I have mentioned it's a universal thing, like no confined to any individual group of individual caste, color, religion. Creativity का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है. Like anyone can be creative irrespective of whether if they're having that particular caste, particular religion, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि elite group है या फिर middle class है, there is nothing like that. Anyone can be creative, and it depends upon the applicability and the cultivation of the culture. Okay. So you understood about the basics of creativity, right? There are a few more myths I wanted to clear it out. It's like it can be, it's not mandatory that creativity has to be into the certain shape. Like it can be into the any form, whether it's into the color, style, or any way. मतलब किसी भी तरीके में we can see the creativity, right? Like जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं, तो आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपके कपड़े पहनने का तरीका, that can be also creative. टीचर की पढ़ाने का तरीका, that can also be creative. किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, that can also be creative. किसी की खाना खाने का तरीका, that can also be creative. अब आप मुझे बताइए what are, अगर हम लोग ऐसे एग्जांपल ले तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या क्रिएटिव हो सकता है? कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ यार, किसी के खाना खाने का तरीका, that can be creative. किसी का कपड़े पहनने का तरीका, that can be creative. तो आपको क्या लगता है और ऐसी क्या चीजें हो सकती है जो क्रिएटिव हो सकती है? बताइए, आपको क्या लगता है कि ऐसे और क्या चीजें हो सकती है जो क्रिएटिव हो सकती है, जितना हमने अभी तक आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली, कि क्या क्या चीजें और क्रिएटिव हो सकती है? देखिए, जब तक आप लोग इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक we won't be having complete involvement from your end, तब तक ये चीजें समझेंगे नहीं और तब तक इन चीजों को एप्लीकेशन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो बताइए, आपको क्या लगता है क्या क्या तरीकों से क्रिएटिव बनाया जा सकता है? So when a teacher goes to the classroom with aids, she can make her teaching aids very creative so that the message which she wants to give her to her students can get through very easily. Perfect. So that teaching methods can be creative, you're saying, right? Yes, sir. Perfect example. Anyone else? We have 20 plus participants here, okay? And we got only one question of having a creativity example. कुछ भी, जैसे कि बैठने का तरीका, that can be also creative. है ना? क्या मतलब आज हमको क्या करना है? सबसे पहले we have to break that mindset. Okay? When we talk about creativity, like in my last point, I'll tell you why exactly we are having this barrier of saying that we got stuck with what you can say, with a mind block. उस पर बाद में जाएंगे. पहले आप ये बताइए कि और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कि क्रिएटिविटी के, क्या क्या क्रिएटिव और हो सकता है? खाने का तरीका हो गया, पानी पीने का तरीका हो गया, चलने का तरीका हो गया, कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है. आप मुझे बताइए, आप में से सबने YouTube को कभी ना कभी तो चलाया होगा ना? यस सर. यस. तो अभी यूट्यूबर्स को क्या कहा जाता है? कंटेंट क्रिएटर्स, है ना? कंटेंट क्रिएटर्स. कि उनको कंटेंट क्रिएटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे क्रिएट द कंटेंट्स इन अ क्रिएटिव वे. मतलब हर एक का अपना अपना कंटेंट बनाने का तरीका अलग है. एंड दैट्स नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एन यूनिकनेस. और क्रिएटिविटी इज नथिंग बट, एज वी मेंशन, कि यूनिकनेस के तरीके को अपनाना ही क्रिएटिविटी की अलामत है.
So that's why we are calling it कि हर कोई क्रिएटिव हो सकता है, हर कोई इनोवेशन कर सकता है, या फिर हर कोई नई चीजें बना सकता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कैन टॉक कि बहुत बार लगता है ना कि आपने भी इस चीज को सोचा होगा, जो लोग स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं, कि बहुत बार है ना हम लोग नई चीजों के बारे में सोचना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पाते. इट्स कॉल्ड एज अ माइंड ब्लॉक, है ना. आप लोगों ने भी इस चीज को फील किया होगा कि यार इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ कर लिया लाइफ में, लेकिन नई चीज नहीं सोच पा रहे हैं. या फिर बच्चे भी बहुत बार ये बोल देते हैं कि सर कुछ नया 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 कुछ करने का ना मन करता है, ना नया The कुछ sound was सोचने का. breaking. It is Hello? not coming clearly. Is it still breaking or is it's fine now? Oh, Hello? sir, your voice is Is it still breaking? it was not breaking. Your voice is fine. Okay. Oh, so I think that person might have an internet issue. Okay. So just keep checking on me. Okay. Thank you. Now look at this last point I have put. Okay. This is really important. Like we first ask our students to remember or to recite or to mug the things which are only important for exams, right? Like, but then we expect them to think out of the box. Isn't this little strange? मतलब पहले हम अपने बच्चों को खुद बोलते हैं कि बस इतना ही पढ़ो, इसके बाहर ना जाओ. we limit their mindset, we limit their mind, and then we suddenly जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कॉलेज में आने के बाद में कि think out of the box. How it's going to be possible, right? क्योंकि बहुत बार जैसे कि अभी एक फेमस एग्जांपल अगर आप लोग ले लें, तो जैसे कि अगर समझ लीजिए कि कोई बंदा कोई अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, ठीक है, कोई अगर छोटा बच्चा अपने दोस्त के साथ में खेल रहा है और उसको आप जाकर पूछ ले कि हाँ बताओ कि उसको अगर टीचर ने समझ लीजिए कि एक एग्जांपल दिया है सॉल्व करने के लिए कि आप बताओ आप अपने दोस्त के साथ क्या क्या करते हो, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो याद कर रहा है चीजों को, कि उसको 3 पॉइंट्स लिखकर दे दिए कि हाँ मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ गाना गाता हूँ और मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल आता हूँ. ये 3 पॉइंट्स उसको दे दिए गए. नाउ अब वो उसकी आदत ऐसी हो गई है कि वो बस उतना ही कर रहा है जितना उसको बताया गया है. He's not thinking out of the box. Now if you go and ask that particular children what all you can do with your friend, he'll be like, okay, I can go to school with my friend, I can sing with him, and I can spend time with, I can play with him. But if you ask him, can you eat by being with him? Can you prepare something with him? Can you just go and explore the world with him? He'll be like, I don't know, because my teachers has asked me to answer those questions in a particular matter or particular manner. इससे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जो कल्टीवेट कर रहे हैं कल्चर, या फिर हम लोग जब बच्चों की रहनुमाई, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, so we are limiting their belief, we are limiting the way they should think. So make sure, it could be a little request from my end, that don't put your students, your children, or anyone in the mind trap of mugging the things or believing that only this much will be possible, and that would be a disaster if they believe that. Like if they believe that, okay, we have to do only what has been taught, then there would never be a creative outcome from that particular student or a particular individual. So understood, right? Now I'll be taking you, अब है ना कुछ सीरियस बात करते हैं, ठीक है. अभी तक कैसा है कि अभी तक we have talked a little about basics, कि क्रिएटिविटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया. विक्रांत को तुम्हारा सर नहीं करेगा. Hello. Okay. I think that was a miss unmute. Okay. Now अब हम लोग बात करते हैं कुछ सीरियस तरीकों से, क्योंकि देखिए आप, now I am an emerging scientist, so मैं चाहता हूं कि मैं साइंटिफिकली आपको ये बताऊं कि क्रिएटिविटी एक्चुअली में कैसे डिस्टिंग्विश होती है. अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं कि क्रिएटिविटी जो है इट्स अ कॉमन डेफिनेशन. अभी मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्रिएटिविटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है. ओके, सो यू गाइस आर विथ मी, राइट? दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू, द टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी. Yes, sir. Okay, so this is a really interesting thing.
आज के बाद आप जब भी देखोगे ना क्रिएटिविटी की तरफ, तो यू विल बी थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. So we distribute the creativity into the 4 categories: deliberate and cognitive, deliberate and emotional, spontaneous and cognitive, spontaneous and emotional. अब deliberate के मीनिंग क्या होते हैं यूजुअली? कि कोई ऐसी चीज करना जो स्लोली आप कर रहे हो, प्लानिंग तरीके से कर रहे हो और बिल्कुल डिटेल में कर रहे हो. कॉग्निटिव की मीनिंग क्या होती है? कि आप सोच कर किसी चीज को कर रहे हो जिसमें आपका दिमाग खर्च हो रहा है. ओके. इमोशनल मतलब कोई ऐसी चीज जो फील करके कर रहे हो. और स्पॉन्टेनियस मतलब कोई ऐसी चीज या फिर कोई ऐसा तरीका जो आपको इमीडिएटली आ जाए या फिर इंस्टेंटली आ जाए, कि अचानक से स्पॉट, जैसे हम बोलते हैं ना कि अचानक से कोई चीज याद आ जाए. ओके. तो इन चारों तरीकों को मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा एंड देन विल डिसाइड कि कौन सा स्टूडेंट या फिर कौन सा इंसान किस कैटेगरी में बैठता है और उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए सो दैट उसकी क्रिएटिविटी एनहांस हो सके. सो फर्स्ट वन, डेलिब्रेट एंड कॉग्निटिव. अगर हम लोग बात करें तो दिस इज लाइक, ऐसा आप समझ लीजिए कि अब इसमें देखिए 2 वर्ड हैं, डेलिब्रेट एंड कॉग्निटिव. तो अगर वर्ड से ये हम लोग देखें तो डेलिब्रेट मींस लॉन्ग टर्म में काम करने वाला, और सेकंड कॉग्निटिव दिमाग का इस्तेमाल करने वाला. ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि जो दिमाग का यूज करता है और लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ में काम करता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है. एक ग्रेट एग्जांपल थॉमस एल्वा एडिसन सर. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1000 बार 10,000 बार उन्होंने एफर्ट्स डाले उस बल्ब को बनाने में, उस बल्ब को बेहतर बनाने में, एक लॉन्ग टर्म टाइम के लिए. और क्या यूज किया? अपना दिमाग यूज किया. सो ही कम्स इनटू द डेलिब्रेट एंड कॉग्निटिव थिंकिंग. तो अगर इस तरीके से आपका बच्चा सोचता है तो वो इस कैटेगरी में आता है. अब इस टाइम इस कैटेगरी में क्या काम करता है? इट्स कॉल्ड एज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. जो आपका जो फोरहेड है उसके तरफ एक दिमाग का हिस्सा होता है. there is one particular portion of a brain which is being in front of your like forehead, which will be what I can say responsible for focusing on such kind of and creativity. अगर शॉर्टकट में बोलूं तो ये जो आपका हिस्सा है which will be focusing on, फर्स्ट थिंग आपको फोकस करने में हेल्प करता है. दूसरा ये कि कनेक्शन बना देता है आपके ब्रेन और आपकी इंफॉर्मेशन के बीच में. अभी समझ लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है कि जो होशियार है और मेहनती है, समझ रहे हो, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज हार्ड वर्कर, तो वो इस कैटेगरी में आता है. अगर ऐसे लोग आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए? उनसे बेहतर आउटपुट निकालने के लिए गिव सम टाइम, उनको वक्त दीजिए ताकि वो अपने क्रिएटिविटी का, अपने 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 जहनी सलाहियतों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और उनको सही तरीके से जोड़कर एक अच्छे आउटकम को लाने में मदद कर सके. ओके. सो दैट वन बी द फर्स्ट वन. अब सेकंड वन पर आते हैं, डेलिब्रेट एंड इमोशनल. डेलिब्रेट मैंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं, प्लान तरीके से काम कर सकते हैं. लेकिन अब इमोशनल, तो यहां पर जो लोग आते हैं, अब समझ लीजिए कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि आप अचानक से किसी टाइम, मतलब आप किसी बाग में चल रहे हैं, ठीक है, आप किसी बाग में चल रहे हैं और आप किसी प्रॉब्लम पर सोच रहे हैं कि हाँ यार क्यों ना इस चीज को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, हम किसी चीज को वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, या फिर इस चीज का सोल्यूशन ये हो सकता है क्या, उस चीज का सोल्यूशन ये हो सकता है क्या. और सडनली आपको याद आ जाएगी हाँ क्यों ना, क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. मतलब ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान कि जो ज्यादा जहनी सलाहियत नहीं रखता है, मतलब ही इज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, लाइक he is obviously having some knowledge, he is obviously having an experience or having some kind of learning, but he is mostly focusing on what you can say the kind of questions he asks. आपने बहुत बार बच्चों को देखा होगा स्कूल्स में रैंडम से सवाल पूछते हैं कि सर आसमान नीला ही क्यों है, सर पानी ऊपर से ही क्यों गिरता है, सर चौक से लिखते ही क्यों है. So people or the students like that comes under this category. तो अब ऐसे लोगों या फिर ऐसे बच्चों के साथ में अगर आपको काम करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है. या फिर एक कोई और एग्जांपल अगर हम लोग ले लेके समझ लीजिए कि किसी के साथ में कोई बुरा हादसा हो गया, तो उस टाइम पे उसकी क्रिएटिविटी एक डिफरेंट तरीके से काम करती है. तो उस टाइम पे इन लोगों के साथ में अगर आपको काम करना है तो आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा. कि ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत बार है ना, पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है तो वो क्या करता है, पहले आपको सवाल पूछता है. जैसे उसने सवाल पूछ लिया फिर वो क्या करता है, वो इमीडिएटली उसका आंसर नहीं ढूंढता है. कुछ टाइम के बाद में वो आकर सोचता है कि हाँ यार मुझे उस क्वेश्चन को सोचना चाहिए था. सो सच पीपल और सच स्टूडेंट विल कम अंडर दिस कैटेगरी. थर्ड वन, स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव.
जैसे मैंने बताया कॉग्निटिव, अगेन दिमाग की सलाहियत का इस्तेमाल, स्पॉन्टेनियस, अचानक से कोई चीज याद आ गई, जैसे कि अभी अभी ये कहां पर होता है, तो इसको एज बेसल गैंग्लिया, मतलब ये भी एक दिमाग का हिस्सा है कि जो मोस्टली यूज होता है डोपामिन को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूं तो न्यूटन और सेब का है, कि जैसे कि न्यूटन बैठा हुआ था या फिर बैठे हुए थे, सर आइजैक न्यूटन, रिस्पेक्ट से नाम ले हम उनका, क्योंकि काफी उन्होंने दिया है फिजिक्स को, और हम भी बीइंग अ फिजिसिस्ट वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि अब आइजैक न्यूटन सर बैठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने अपने थीसिस का, अपने वर्क का काम कर रहे हैं, वो अपने धुन में लगे हुए हैं, और अचानक से सेब उनके सर पे गिर गया। और अब वो ये सोचने की जगह पे कि यार मैं अपना काम कर रहा हूं, अचानक से वो सोचते कि ऊपर से क्यों गिरा, एंड देन ही स्लोली स्टार्टेड thinking about the gravitational forces and why exactly and how exactly these forces are pulling the objects down. Okay, तो इस तरीके से अगर कोई इंसान है कि क्या कि एक काम कर रहा है लेकिन सोच किसी और चीज के बारे में रहा है, प्रोडक्टिवली, मतलब डे ड्रीमिंग नहीं, देन दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अगर ऐसे टाइम पर आता है, अगर इस कैटेगरी में कोई इंसान आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, देन अगेन जस्ट बी लिटिल पेशेंस विद देम एंड लेटिंग देम डू देयर वर्क। और ऐसे लोगों को आइडियाज, ऐसे लोगों को क्रिएटिविटी किसी भी वक्त में कहीं से भी आ सकती है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि चलते चलते नया आइडिया आ गया, भाई खाना खा रहा था अचानक से आइडिया आ गया, वॉशरूम जा रहा था अचानक से नया आइडिया आ गया, किसी के साथ में भी कोई भी आइडिया आ सकता है ऐसे केस में। लास्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल। ये एक्चुअली मोस्ट कॉमन टाइप है जो हम सबको पता है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, या तो आप क्रिएटिव हो या तो नहीं हो, सिंपल। हमको ये नहीं पता कि पहले 3 टाइप में भी वो बंदा आ सकता है, फिर पर्सन आ सकता है। तो इसका एक बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, जैसे मोजार्ट हो गया, लियोनार्डो दा विंसी हो गया, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, अलामा इकबाल सर हो गए, या फिर आजकल के अगर हम लोग सिंगर्स बोल जैसे एमएनएम हो गया, या फिर आपके कोई अरिजीत सिंह हो गया, या फिर कोई भी हो गया। तो ये जो है, ये ऑल ऑफ देम क्या करते हैं, इमोशन से कनेक्ट कर लेते हैं चीजों को, है ना, इमोशन से, फीलिंग से, रिलीजियस एक्सपीरियंस से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, एंड दे थिंक क्रिएटिवली। तो इस तरीके से अगर चीजें हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इस तरीके से आपके पहचान में कोई इंसान है और उसकी क्रिएटिविटी को आपको बढ़ाना है, उस तरीके का माहौल पैदा कर दीजिए। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा, जो बुक राइटर्स हैं या फिर जो क्रिएटिव थिंकर से अलग कर लेते हैं अपने आप को दुनिया से कुछ टाइम के लिए, या फिर कोई आपने देखा होगा पहाड़ों में चला जाता है, कोई आपने देखा होगा कहीं और पर चला जाता है सुकून से रहने के लिए, ताकि सोच सके, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ अगर हम लोग कंक्लूजन देखें, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी का, तो ये 4 तरीके हैं। और ये देखिए, अगर डेलिब्रेट और कॉग्निटिव थॉमस एल्वा एडिसन सर की तरह है तो वो इस कैटेगरी में आता है। अगर कुछ आहा मोमेंट्स वाले लोग हैं कि हाँ यार अचानक से हवा में से बातें आ गई अचानक से, तो इमोशनल और डेलिब्रेट है। अगर सोचता भी है और रैंडमली चीजें आ रही है उसके पास, मतलब चल रहा है अचानक से कुछ काम अलग कर रहा है, सोच कुछ अलग रहा है, देन वो आता है न्यूटन और एप्पल सर के केस की तरीके से। अगर इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को और स्पॉन्टेनियसली सोचते हैं, दोनों वो आता है स्पॉन्टेनियस और इमोशनल क्रिएटिविटी में। ओके, सो यू अंडरस्टूड अबाउट द क्रिएटिविटी बेसिक्स, राइट? हाउ इज इट? कोई सवाल अगर आपका हो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस देन आई वुड लव टू नो। अगर आपको ये चारों चीजें पहले से पता थी तो भी आप बता सकते हैं, या अगर आपके लिए नहीं थी तो भी आप बता सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आगे नहीं For me, जाएंगे। it's a totally new thing. ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। Yes, sir. देखिए, Actually, creativity we knew as a whole, but उसके इतने सारे aspects भी हो सकते हैं that we came to know from what you have taught us now. With examples. It's Yes, really yes, different. Alhamdulillah. Yes. Okay. So now at least you don't think that what you can say, Thomas Alva Edison sir and Sir Isaac Newton are having the same kind of creativity, right? They're having a different kind of creativity. Yes, sir. Yes. Okay. So now at least now we won't simply judge anyone on the basis of creativity. कि ओके यार, अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो मतलब आप क्रिएटिव नहीं हो, है ना? बहुत बार लोग बोलते हैं कि हाँ यार ये आर्टिस्ट नहीं मतलब ये क्रिएटिव नहीं है, ये कुछ अलग नहीं कर रहे मतलब क्रिएटिव नहीं है। देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच क्रिएटिविटी कैन बी एनहांस्ड। चलिए, तो सेकंड टॉपिक वी हैव कवर्ड।
सेकेंड थर्ड टॉपिक पे आते हैं क्रिएटिविटी का एप्लीकेशन टू जनरेट न्यू आइडियाज, क्योंकि जैसे मैंने बताया आई एम एन इनोवेटर, मेरा काम है नई आइडियाज लाना, नई आइडियाज पर काम करना और लोगों को नई आइडियाज के काम करने के लिए उभारना। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। तो लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन है फोकसेस ऑन एनालिटिकल स्किल्स, राइट साइड फोकसेस ऑन द आर्टिस्टिक स्किल्स। ओके, and this is obviously the most powerful thing, so I won't spend more time about the mind. Now क्या करना चाहिए अगर आपको एक नई आइडिया की खोज करनी है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो क्या एक फाउंडेशन होना चाहिए अगर आपको नई आइडियाज को लाना है, बच्चों से भी अगर नई आइडियाज को निकलवाना है या फिर किसी से भी, तो वेरी फर्स्ट थिंग इट हैज टू बी क्यूरियस, कि आप चेक करें कि आप क्यूरियस हैं क्या, आप चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी रखते हैं क्या, कि बी द फैन ऑफ साइंस एंड यूनिवर्स। अगर आपको नई आइडियाज को लाना है, देन आस्क क्वेश्चन। द वेरी कॉमन थिंग और द very worst thing which we do in the education system is to stop students from asking or from letting them ask questions। कि बहुत बार होता है ना, नहीं यार आप पूछो ना, मतलब बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं कि नहीं हमारे स्कूल में we allow students to ask, but they allow students to ask only the questions which are related to syllabus। अगर कोई बंदा आज आकर रैंडमली पूछे कि सर आप ये बताओ कि अगर ये मून और अगर आप मून अगर ये आपका जमीन के अक्रॉस में घूमता है, तो ये बताओ कि ये सिर्फ ग्रेविटी से कनेक्टेड है क्या? अगर सर ये हम लोग ये अगर इस स्पेस में हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि लाइट को पास होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, तो लाइट क्यों पास हो रही है? अगर हम लोग आसमान की बात कर रहे हैं और हम लोग जैसा बोलते हैं कि आसमान है, लेकिन जब आप स्पेस से देखते हो तो आपको आसमान ही नहीं दिखाई देता है, तो आसमान कहाँ है? अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे बच्चे तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं यार नहीं, डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस। These are the ways by which anyone can actually enhance the creativity of a student. So let them ask, or even you should ask questions. Second और थर्ड वन भी क्रिटिसाइजिंग। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि किसी का नुक्स ना निकालो, लेकिन अगर आपको नया सोल्यूशन निकालना है तो आपको उसका नुक्स निकालना चाहिए, और नुक्स निकाल कर उस पर काम करना चाहिए। The another thing would be the problem finding. Look for the problem. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ यार क्या ही है, ठीक है, we are fine, you know, we are fine with what we have. No, look for the problems and then start solving it. Then do the critical thinking. Don't be average, be savage. मेरा हमेशा मानना है, जो एवरेज है ना, they can't do much. We have to be savage. थोड़ा सा अलग हटकर सोचे. Then imagine the solution at its best. What do you think? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इन दोनों का अगर एग्जांपल ले, फिर स्टीफन हॉकिंस, इनका हम एग्जांपल ले, व्हाट डू यू थिंक इन तीनों में क्या चीज कॉमन है अपार्ट फ्रॉम ये कि तीनों हाईली इंटेलिजेंट है? व्हाट डू यू थिंक? चलिए ये एक क्वेश्चन पूछ के मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। व्हाट डू यू थिंक इन तीनों में क्या एक चीज कॉमन है? निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंस। टेक्निकल नहीं है। इन तीन लोगों में एक क्या चीज कॉमन है, बताइए क्या लगता है आपको, क्या चीज कॉमन है? So they dropped out of school? Is it that common? No. It's like एक मिसकंसेप्शन है बार बार के मैक्सिमम जो बिलियनर्स है, all of they are school dropouts. Not that. कोई और? अब ये मत बताइए कि ये तीनों इंडिया से नहीं है ना? इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि और क्या हो सकता है? They all are researchers. They always research things. कम ऑन, अब ये तीनों तो साइंटिस्ट ही हैं, मतलब फिजिशियंस हैं, तो रिसर्च करेंगे। एक ऐसी कॉमन, एक ऐसी सिंपल सी चीज है, मतलब मैं टेक्निकल नहीं जाऊंगा, एक सिंपल सी चीज है और ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। They were curious to know something. या क्यूरियस तो है, लेकिन क्यूरियस तो बाकी के भी है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन सर भी है ना, या फिर हमारे इलॉन मस्क भी है। आप भी क्यूरियस हैं, क्या चीज है आपको लगता है कि क्या चीज है जो इन तीनों में है और बाकी ज्यादा लोगों में नहीं है? नेवर गिव अप। वाह सर वाह, मतलब गिव अप तो आप भी नहीं कर रहे हैं या फिर गिव अप तो कोई नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन तीन लोगों की खासियत क्या थी पता है? वो किसी भी चीज पर रियलिटी में काम करने से पहले सारी चीजों को अपने दिमाग में सोच लेते थे। जैसे निकोला सर की अगर मैं बात करूं, निकोला टेस्ला की,
तो उनका ऐसा था कि ही यूज्ड टू कॉल हिज माइंड एन आइडिया फैक्ट्री, कि जो भी मुझे बनाना है, जो भी मुझे करना है, सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा, और फिर सीधा सॉल्यूशन लिख देते थे। सब कुछ यहाँ सोच लिया, पहले सब कुछ पूरा यहाँ पे कर लिया, एक कॉमन चीज। दूसरा, स्टीफन हॉकिंग सर का हमको पता है, he was not able to walk, right? He was not able to do any physical movement. He only used to think. बस सोचना, सारी यूनिवर्स को अपने दिमाग में सोचना। और सबसे फेमस एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का, मतलब उनकी डॉक्यूमेंट्री में भी इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि व्हाट इज अ स्पेशल थिंग अबाउट आइंस्टाइन अपार्ट फ्रॉम हिज इंटेलिजेंस। सो दे से he was used to imagine the universe at his table. मतलब जहां पर वो पढ़ाई करने बैठते थे तो लोग ऐसा बोलते थे कि he used to imagine कि पूरा यूनिवर्स उनके टेबल पर है, एंड देन he used to think ओके इस चीज को ऐसे किया जा सकता है, उस चीज को वैसे किया जा सकता है। तो ये जो कॉमन चीज है, ये आज हम सीख सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे स्टूडेंट्स, क्या हमारा यूथ, क्या हमारे वर्किंग क्लास के लोग आर एबल टू थिंक इन दैट वे। हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ यार काम कर लेंगे, काम करना इज अ सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना। सो दिस इज द वेरी वेरी कॉमन थिंग विच वाज बीन अमंग देम, सो वी हैव टू आल्सो इनकल्ट्रेट दैट थिंग। इसीलिए इमेजिनिंग पे आ गया। लर्निंग, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, एंड अ विल टू इम्पैक्ट, कि कुछ करना है, देन यू हैव टू कम अप विद द आइडिया। नाउ आई एम गिविंग अपने कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट्स का मैं आपको चीजें शेयर कर रहा हूँ, मतलब जो हम लोग प्रोग्राम्स रन करते हैं उसकी कुछ चीजें मैं आपको फ्रीली शेयर कर रहा हूँ, जस्ट कि बस लोगों का फायदा हो जाए, और जस्ट इन अ लव ऑफ एहसान सर कुड से। ओके, सो 4 पॉपुलर वेज ऑफ आइडिएशन, के अगर नई आइडियाज को पैदा करना, नए आइडियाज को लाना है तो किस तरीके से ला सकते हैं। सबसे पहली चीज, क्रिएटिव थिंकिंग। कौन कर सकता है? मोस्टली इंडिविजुअल, अकेला इंसान, अकेला आप कर रहे हो तो आप इंडिविजुअली इस चीज को क्रिएटिवली थिंक कर सकते हो। कैसे करना है आपको? आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। कैसे सोचोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजिन द वर्ल्ड एट योर डेस्क, यहां पर बैठ के सोचो कि पूरा ब्रह्मांड आपके सामने है। पहले तो ये चीज होगी। सेकेंड, ये सोचो कि अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ऐसा समझ लो कि बस उसी प्रॉब्लम के लिए आज दुनिया चल रही है, उसके अलावा दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरीके से सॉल्व कर लो। एंड थर्ड थिंग, कि अगर अकेले काम कर रहे हो तो ऐसा समझो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लिमिट लगा दोगे आइडिया पर, देन यू वुड नेवर बी एबल टू फाइंड अ यूनिक आइडिया। सो दैट्स द वे यू कैन क्रिएट द थिंग। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्रिएटिविटी बूट कैंप। अब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो। अब इसमें आपको क्या करना है? आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है, इनसाइड द बॉक्स भी सोचना है। देयर इज वन फेमस बुक कॉल्ड एज डायमंड्स इन माय बैकयार्ड, जिसका समरी ये है कि people usually try to find the ideas out of the box, कि कुछ अलग करेंगे तो नई आइडिया आएगी। but the thing is that there are many things within you, with you and by you, because of what you can generate new ideas by your own self, कि खुद के पास जितनी चीजें हैं, जितने अपने आसपास की चीजें हैं, वहीं से कुछ नई आइडिया निकालो। so when you talk about that, you can do the creativity boot camp. Then what? You have to exchange the idea. Okay, you have to keep on exchanging the idea in that particular way. तो ये तो हो गया। Then third thing, design thinking। थोड़ा सा क्रिटिकली आते हैं कि बिग क्रिटिक, ये थोड़ा सा हट के सोचो, पूछो कि भाई ये क्यों है, अगर ये ऐसा ही है तो क्यों है। थोड़ा सा टेक्निकली सोचो, डिजाइन की तरफ सोचो कि अगर ये इस चीज का शेप ऐसा ही है तो क्यों है, क्यों ना इस चीज को इस तरीके से बनाया जाए, क्यों ना थोड़ी सी चीजों को सिंप्लीफाइड कर दिया जाए। अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार लोगों को लगता है कि इनोवेशन करना है, किसी नई चीज को बनाना है तो एग्जिस्टिंग चीजों में बदलाव करते वक्त नई चीजों को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, कि अगर आपको बेहतर इनोवेशन करने हैं तो कभी कभी आपको एग्जिस्टिंग चीजों में से अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट भी करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। तो कभी कभी आपको उन चीजों को भी करना पड़ता है। दैट यू विल बी एबल टू डू ओनली व्हेन यू विल बी डूइंग द डिजाइन थिंकिंग। Then obviously draw the multiple options for the design by which you can get the new ideas. And the last and the most famous is the brainstorming, the top ways to generate multiple ideas. क्या करना है आपको? सिंपल सा टॉपिक लेना है, कोई भी एक टॉपिक, एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम लेना है, टाइम स्पेसिफिक चीजें हो कि जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये बॉटल है,
अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 30 सेकंड है, आप मुझे बताइए कि इस बॉटल के इस्तेमाल में क्या कर सकता हूं। चलिए बताइए, मैं आपकी स्क्रीन लेकर आता हूं आपके सामने। 30 सेकंड है आपके पास, आप बताइए इस बॉटल का मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप मतलब इसमें पानी पानी पी भर लेता हूँ। सकते हैं, आप पानी हाँ, पी मैं पानी सकते पी हैं। लेता हूँ। और क्या कर सकते हैं इस बॉटल का, बताइए। देखिए, जैसे मैंने बताया, क्रिएटिविटी के लिए यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, मतलब कोई लिमिट मत रखिए। इस बॉटल से हम क्या कर सकते हैं, We बताइए। can plant. We ओके, वी can कैन plant प्लांट। a plant. ओके, वी कैन प्लांट अ प्लांट, ग्रेट वन। और एल्स वी कैन डू, व्हाट एल्स वी कैन डू, बताइए। हाँ सर, अब हम इस बोतल, अगर ये बोतल वेस्ट हो जाती है तो इसको एक छोटे टुकड़ों में, पार्टिकल्स में इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट जैसे बॉक्स वगैरह ये उससे बना सकते हैं। बराबर, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। एक नंबर। और बताइए, और क्या कर सकते हैं इस बॉटल से। We can make a water feeder for birds ओके, this summer season. और क्या कर सकते हैं। देखिए, 30 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड हो गए, 10 सेकंड बाकी है। और क्या कर सकते हैं। इसको किसी डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं। बस 5 सेकंड लास्ट के। We can use by melting that water, we can use as a tar. I mean, mixing with tar, and we can use build roads. ओके, बढ़िया। अभी देखिए, अभी आप सबने जो आइडियाज दिए, ऑल ऑफ दोस आइडियाज आर यूजफुल वन, राइट, मानते हैं आप। अब जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो उसमें कैसे होता है, रेशो होता है कि ज्यादातर आइडियाज, मतलब ऑलमोस्ट 70% आइडियाज आर, हम लोग क्या बोलते हैं कि मोस्टली ऐसे आइडियाज होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर समझ लीजिए कि उनका कोई यूज ही नहीं है। जैसे कि अगर मुझे कोई बोल दे कि भाई मौजम बताओ, आपके पास 10 सेकंड है, इस बॉटल का यूज क्या कर सकते हो, तो वेरी फर्स्ट थिंग विच विल कम इन माइंड कि हाँ यार, पानी भर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देन आई विल बी लाइक, इसको मैं एज अ पेपर वेट की तरह यूज कर सकता हूँ। इसको मैं मॉम को दे दूंगा, मॉम को बोल दूंगा कि हाँ भाई, इससे रोटी बना दो। इससे मैं क्या कर दूंगा, इससे मैं क्या कर दूंगा, इससे किसको फेंक के मार दूंगा। भाई मेरा गुस्सा आ रहा है, मैं फेंक के मार दूंगा। इससे मैं क्या कर दूंगा, इससे मैं तकिया बना लूंगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अभी तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि क्रिएटिविटी, हम लोग बस प्रोडक्टिव तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन जब क्रिएटिव तरीके से बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे देयर इज अ फेमस कोट, सॉरी कोट बोल रहा हूँ, देयर इज अ फेमस प्रैक्टिस। अगर आपको आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को बदलना है, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना है, तो बोलते हैं कि यू शुड चेंज योर रूटीन। आप जिस रास्ते से रोज जा रहे हो, कभी उसको चेंज करके देखो, you will see a lot of new ideas coming in your way. आप जिस तरीके का खाना खा रहे हो, कभी उसको बदल के देखो, क्या पता आपको नए आइडियाज आ जाए। So this technique is actually being helpful, when you specifically focusing on a particular idea. अगर आपका दिमाग रुक गया है कि आपको नए आइडियाज ही नहीं आ रहे, तो ऐसे टाइम को आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू चेंजिंग अ लिटिल रूटीन, कि थोड़ा सा रूटीन को चेंज करके देखिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर दैट बॉटल वाला थिंग। सो यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसमें एक्चुअली अलग अलग लेवल होते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो वी डू अ लॉट विथ लाइक ऑब्जेक्ट्स देकर, हो गया कि अब जैसे मैंने बताया ना, बॉटल से क्या किया जा सकता है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकेंड वन होता है प्रोसेस ओरिएंटेड और थॉट ओरिएंटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं, चलिए इस पे भी एक 30 सेकंड का राउंड कर लेते हैं। सेकंड, आपको मैंने ये बता दिया कि आपका टॉपिक है नेक्स्ट 30 सेकंड का, आपको एक दीवार में होल करना है। क्या करना है, दीवार में होल करना है। आप किस तरीके से दीवार में होल कर सकते हैं, आपके पास 30 सेकंड है, बताइए। दीवार में आपको होल करना है, लाइक यू हैव टू डिग अ होल इन अ वॉल, और यू हैव टू क्रिएट अ होल इन अ वॉल। बताइए कैसे कर सकते हैं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ड्रिल मशीन से कर सकते हैं सर, ठीक है, ड्रिल मशीन से कर अपने सकते हैं। हैम्पर वगैरह से। ओके, ड्रिल मशीन हो गया, हैमर हो गया, और किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, और देखिए 3 सिर्फ आंसर आ गए। तो क्या ये हमारा क्रिएटिविटी ब्लॉक नहीं है। अभी जब हम लोग जाते थे ना, तो मैंने एक 7 स्टैंडर्ड के 7 to 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर हमने सेशन लिया था। तो पहले उनका भी ऐसा ही था कि सर स्क्रू ड्राइवर है, ड्रिल मशीन है, या फिर कोई नोकदार चीज है उससे। लेकिन जब लाइक जैसा अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो
when they come with the group कि हाँ यार हम लोग ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो क्रिएटिव हैं, सो और उनको हमने बता दिया कि आप लिमिट को भूल जाइए। इससे इसका है ना एक बेहतरीन एग्जांपल एक और तरीका है क्रिएटिविटी को बढ़ाने का, इट्स कॉल्ड एज फॉरगेट द पास्ट। क्या आप भूल जाइए कि पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपने कैसे किया है। अब मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आप भूल जाओ कि आज से पहले आपने कभी भी दीवार में होल किया है, आप भूल जाओ, आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपने आज से पहले दीवार में होल किया, और आप बताओ मुझे कैसे करोगे। आपको पता ही नहीं कि ड्रिल मशीन से होल होता है, और अगर मैं आपको बोलूं कि होल करना है आपको, बिल्कुल स्टोन एज का इंसान है समझ, उसको होल करना कैसे करेगा। मतलब आप है और आपको पता नहीं है कि कैसे होल करना है, बट आपके पास फैसिलिटीज बहुत हैं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में है ना। अगर आपको मैं उसके साथ में होल करने बोल तो आप कैसे करोगे बताओ। एक स्टोन लेके हिट करेंगे, बार बार उसको हिट करेंगे, वो हो जाएगा। बिल्कुल सर, अभी जैसे कि ये देखिए बहुत बेहतरीन, मैं अभी इस पे आने वाला। We can seed a plant. कर देंगे सर, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, We can होल करना है ना। we can seed a plant inside it. रूट्स निकल जाएंगे, बराबर। ओके Right. बराबर। और तो अभी जब हम लोग थे ना तो वहां पे एक 7वीं के बच्चे ने क्या बोल दिया था कि सर मैं अपने दोस्त का सर मार दूंगा दीवार में, उससे खड्डा कर दूंगा। मतलब इस तरीके से आप समझो, मतलब क्रिएटिव आपको बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चाइल्डिश बनना पड़ेगा। मतलब अगर आपको बिजनेस ओरिएंटेड चीजों पर भी अगर क्रिएटिवली सोचना है तो आपको दिमाग को तो थोड़ा खोलना पड़ेगा। मतलब चाइल्डिश, वो बोलते हैं ना कि जो चिल्ड्रंस है ना, चिल्ड्रंस आर बॉर्न क्रिएटिव, टैलेंटेड का पता नहीं, बट चिल्ड्रंस आर बॉर्न क्रिएटिव। आपने बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देखे होंगे जिसमें बच्चे क्या कर देते हैं, कभी अपने सर पे ये फंसा देता है, क्या हम लोग बोलते हैं कि कोई बॉटल फंसा देता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि कहीं दीवार में अपना सर मार देता है, या फिर कुछ भी अतरंगी चीजें करते रहते हैं। दे आर क्यूरियस एंड दे आर क्रिएटिव। मतलब किसी भी चीज से कुछ भी कर लेना। और इसीलिए बोलते हैं ना कि जब हम लोग भी ट्रेन करते हैं लोगों को, या फिर जब आप लोगों ने भी देखा होगा, तो बार बार यही कहा जाता है कि बच्चे बनो। अगर आपको अलग तरीके से सोचना है तो बच्चे बनो। ये हो गए। देखिए अब अगर हम लोग क्रिएटिविटी की बात अगर स्पेसिफिकली करें तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग एज में क्रिएटिविटी को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। अगर प्री स्कूल के बच्चों की बात करें तो उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल से देखी जाती है। अगर स्कूल के बच्चों की बात करें तो उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल से देखी जाती है। अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की बात करें तो उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल से देखी जाती है। अगर बिजनेसमैन की बात करें तो उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल से देखी जाती है। अगर हाउस वाइफ की बात करें तो उनकी क्रिएटिविटी अलग लेवल से देखी जाती है। जैसे हाउस वाइफ की क्रिएटिविटी किस तरीके से हो सकती है, फैमिली मेंबर्स को अलग अलग तरीके से संभाल पाना, दैट कुड आल्सो बी क्रिएटिव थिंग। टीचर की क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना, दैट्स अ क्रिएटिव थिंग। बिजनेस वाले की क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है कि अलग अपने प्रोडक्ट को अलग अलग वेरिएंट्स में मार्केट में लॉन्च करना। कॉर्पोरेट वाली की क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है, अपने अलग अलग टीम मेंबर्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हर एक की अपने अपने अलग क्रिएटिविटी है। तो दैट्स द वे क्रिएटिविटी कैन बी डिफाइंड एक्चुअली, और ब्रेनस्टॉर्मिंग उस तरीके से की जा सकती है। अभी ये एक्चुअली ना 7 ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे एक्चुअली में आइडियाज को इनोवेशंस में या फिर नई साइंटिफिक खोजों में बनाया जाता है। हम लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, देन आपको उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है। एक्चुअली ये चीजें है ना, इसको प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स में हम लोग करवाते हैं। तो अभी मैं आपको फिलहाल के लिए इसको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है। अगर इफ आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में बोल दीजिए, आपके प्रोडक्ट में बोल दीजिए, आपके आसपास में। देन फाइंड द ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको क्या चाहिए कि उससे आपको क्या बेहतर बनाना है। गैदर द डेटा, जो जो चीजें जरूरी है इंफॉर्मेशन की जमा कर लीजिए, आइडियाज को जनरेट कर लीजिए, सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्यूशन में से सिलेक्ट कीजिए कि जो जो जरूरी है, और फिर फाइनलाइज कीजिए कि ऐसी आइडिया मेरे पास हो जो मेरे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो इस तरीके से देखो आप लोग आइडियाज को एक्चुअली जनरेट कर सकते हैं क्रिएटिव तरीकों से। ओके, तो इसमें कोई सवाल बताइए। अभी तक अपने 3 सेशन हो गए, मतलब 2 सेशन बेसिकली, और 1 हाफ अपना हो गया। कोई सवाल अगर आपका हो? अगर कोई सवाल नहीं है देन वी कैन मूव टू द फाइनल सेशन।
तो आगे बढ़े फिर, बताइए। Yes, sir. Perfect, perfect, perfect. So this is hope I'm not making you bored, है ना? मौसम सर आयसन सर, आपका आवाज एक्चुअली कट हो रहा है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, यस यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस यस यस, थैंक यू। ओके, सो चलिए, लेट्स गेट इनटू द स्मार्ट स्टडीज। ओके, तो एक्चुअली इस टॉपिक को आज चूज करने का मकसद ये है कि वी नो, राइट, वी ऑल नो दैट टुडे is a generation or today is an era of an competition. आप कन्वेंशनल तरीकों से पढ़कर कंपटीशन में एक्सेल नहीं कर सकते। सब लोग एग्री करते हैं इस बातों से? अगर कोई नहीं कर रहे तो बताइए, मैं एग्री करवा देता हूँ। Definitely. नहीं, definitely sir. नहीं तो मैं एग्री करवा देता हूँ, बिकॉज आई एम रियली गुड विद दैट। चलिए, थैंक यू कि आप लोग एग्री करते हैं। देखिए, अब स्मार्ट स्टडीज की बात आती है ना, तो हमने बहुत बार सुना है कि हाँ, आपको स्मार्टली स्टडीज करना है, लेकिन कैसे करना है, इन चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे, और साइंटिफिक तरीकों से, क्योंकि मेरा वही मानना है कि आप अगर बात कर रहे हो, आप फैक्ट्स, फिगर और साइंटिफिक तरीकों से करो। आप कहानियां ना बताओ, क्योंकि कहानियां सुनने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडीज की, किस किस के लिए फायदेमंद हो सकता है। वेरी फर्स्ट, स्कूल कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए। सेकेंड, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। थर्ड, पेरेंट्स के लिए कि वो जाने कि उनके बच्चों को किस तरीके से पढ़वाना है। फोर्थ, टीचर्स के लिए, ताकि वो समझ सके कि उन्होंने जो बीएड में सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। देन कोचेस और कंसल्टेंट्स के लिए कि उन्हें पता हो कि जब उनके पास कोई बंदा या फिर कोई इंसान आए ये पूछने के लिए कि सर और मैडम, आई एम नॉट एबल टू फोकस इन स्टडीज, व्हाट शुड आई डू, देन दे शुड बी एबल टू इन्फॉर्म देम और दे शुड बी एबल टू गाइड देम कि आपको स्मार्ट तरीके से स्टडीज करनी है। ओके, चलिए फिर एक्चुअली ये तो देखिए, स्मार्ट स्टडीज की अगर बात करें तो स्मार्ट स्टडीज में ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, 5 इंग्रेडिएंट्स है, और इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स पर हम लोग बात करते हैं स्मार्ट स्टडीज की। द वेरी फर्स्ट थिंग, क्या लर्निंग टेक्निक्स, व्हाट वुड बी द वे यू शुड लर्न। सेकेंड, आपने पढ़ लिया, नाउ व्हाट वुड बी लाइक, आप समझ पा रहे हो उन चीजों को, अंडरस्टैंडिंग या फिर स्टडी टेक्निक्स। देन मेमोरी टेक्निक्स, क्या आप उन चीजों को याद रख पा रहे हो, रखना है तो किस तरीके से रखना है। देन रिवीजन टेक्निक्स, कि रिवाइज किस तरीके से करना है। एंड फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जाम एक्सेलिंग टेक्निक्स, कि एग्जाम्स को एक्सेल किस तरीके से करना है। यही तो 5 चीजें मिलकर स्मार्ट स्टडीज बनाती है। व्हाट एल्स यू वांट, राइट? यू अंडरस्टूड, राइट? व्हाट आर द स्मार्ट स्टडीज, कि आज हम इन चीजों को कवर करेंगे। एक्चुअली व्हाट ना, लाइक दिस इज अ रियली वास्ट टॉपिक। लाइक आप इसको 1 घंटे 2 घंटे में या फिर आधे पौने घंटे में आप कवर नहीं कर सकते। Like even when we take the programs and we take the workshops, we take half a day, at least half a day to 1 day, because this is a really vast understanding where you have to decide, when you have to sit with the students and when you have to talk with them to understand at what level they are, because आप हर इंसान को सेम तरीके से तोल नहीं सकते, आप हर इंसान को सेम मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। एवरीवन हैज a different way to approach towards exam, everyone has a different way to understand the things, and everyone has a different way to replicate towards a thing. So everyone has a different way, so you have to be a little patient and you have to learn the things in details. Today we'll only do a little, what you can say, an overview of all of those techniques. Now if you talk about the learning methodology, okay, so like when people talk okay यार हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, फर्स्ट विल स्टार्ट विद पढ़ना चाहिए, लर्निंग मेथोडोलॉजी। तो आपने बहुत बार ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा, तो आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मतलब ये कुछ चीजें हमने ऐसे बनाए रखी है कि जिसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं पुणे यूनिवर्सिटी की 2020 की। देन वी हैव द इंटरनेशनल कोचेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वाकई में अपनी लाइफ में कुछ किया है। तो उनके थ्रू जब हम लोग इन चीजों पे आते हैं, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि रट्टा मारना क्या है। अब बताओ, रट्टा मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? Obviously no sir, obviously no. और अगर मैं आपको बोलूं कि मारना चाहिए? मारना चाहिए एक्चुअली, सम ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड इट। यस, दैट्स द थिंग, कि आप कैसे ना, अभी हम लोग कैसे बोलते हैं कि हम जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि
जैसे क्रिएटिविटी में मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट वी नो इज अ जनरलाइज्ड थिंग, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू नो इज एन व्हाट यू कैन से नॉट एक्सक्लूसिवली टू द पॉइंट और अ नीच डाउन थिंग। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर फैक्ट्स हैं, देखो जैसे है ना मैंने पहले कहा कि स्टॉप मगिंग अप, कि ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज जैसे हम लोग अभी तक करते हैं कन्वेंशनल तरीके से कि सारी चीजें रटते चले जाओ, है ना, सारी चीजें रटते चले जाओ। तो आपको सारी चीजों को रटना नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि किन चीजों को रटना है। जैसे कि अगर समझ लीजिए हम लोग एक इस तरीके से बात करें कि आपको मैं सिंपली बता दूं, अगर फॉर्मूलाज हैं, अगर फैक्ट्स है, अगर इवन डेफिनेशंस भी है स्मॉल सोले, तो आप उनको रट दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट हैं, अगर कोई थेसिस है, अगर किसी की कोई समरी है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। इसीलिए ब्लूम्स भी क्या कहते हैं कि फर्स्ट रिमेंबर द फैक्ट्स, देन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन अप्लाई। हम लोग क्या करते थे, वी जस्ट मग द थिंग्स अप एंड देन वी simply start to what you can say omit the things into the exam papers, like usually people do. I don't know about the recent trends, but usually people do. So what we have to do, we have to understand the concepts, we have to remember, or we have to mug up the facts and the formulas, and then we have to apply. So stop mugging the things as usual. Then associate the unknown to known technique. ये आपने बहुत बार सुना होगा कि जो चीजें आपको पता है उनके साथ में ऐसी चीजों को जोड़ दीजिए जो पता नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको कोई एक ऐसा कंसेप्ट आ गया कि जो आपके लिए बिल्कुल नया है, आपके लिए कोई बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल नया है। तो जैसे क्या है कि अगर ओहम्स लॉ का हम लोग एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, तो ओहम्स लॉ क्या बताता है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर वायर और उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अब इसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि समझ लीजिए आपके पास आपके गांव में डैम है, डैम आपके पास ऊपर है, और आपके पास उस डैम से पाइप आ गया और आपके घर पर पानी आ गया है, और वो जो पाइप आ रहा है वो क्या हो रहा है, उस पाइप में अंदर ऐसे समझिए कि पत्थर है, या फिर पाइप की जगह अगर हम लोग बात करें तो नदी से पानी आ रहा है आपके घर की तरफ। तो जैसे ही पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और बीच में जो ये पत्थर है उनकी वजह से वो जो पानी का प्रेशर है वो कम हो रहा है, तो ऊपर से जो पानी आ रहा है, जो नीचे की तरफ पानी बहता हुआ आ रहा है, दैट्स नथिंग बट अ करंट, जो बहता हुआ चीज है। जो पत्थर आपके रास्ते में है, दैट्स नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब पानी जो ऊपर एक अलग लेवल पर है और नीचे जो पानी आपको मिल रहा है अलग लेवल पर है, दैट्स नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज नथिंग बट एन वोल्टेज। तो अब आपने क्या कर दिया, आपने इस तरीके को याद कर लिया कि हाँ यार, यहाँ पर ओम्स लॉ को हम लोगों ने डैम की तरीके से कंपेयर कर दिया। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। देन क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। नाउ बहुत बार आपने ये भी चीज सुनी होगी, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग पढ़ते हैं एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। या फिर लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा सिलेबस खत्म करते हैं एंड देन दे स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स। व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू, अगर आपके पास वक्त की कमी है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस। जैसे यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस ना, योर माइंड नोज कि आपको क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट। या फिर इवन अगर आप पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हैं, देन स्टार्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल पैराग्राफ, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन सो दैट योर माइंड नोज कि आपको क्या ढूंढना है, and then start going through the theory. Next, SQR3 technique we can also use. Sorry for that. S is for survey, कि फर्स्ट कंटेंट को एनालाइज कीजिए जो भी आपको पढ़ना है। अगर सिलेबस भी है तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड एज अ सर्वे। देन क्वेश्चनिंग टेक्निक, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले जानिए कि उसमें पढ़ना क्या है। सिलेबस तो एक अलग चीज है कि आपको पता हो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार इसमें से काम की चीजें क्या क्या ढूंढनी है। आप सारी चीजें नहीं पढ़ते बैठ सकते। देन रीड कि हाँ यार, नाउ यू नो कि आपको क्या पढ़ना है, एंड देन मेक नोट्स आउट ऑफ दैट, एंड देन फाइंड अगेन वी कुड से जो R3 में 3 R है, रीड देन रिसाइट कि हाँ यार नाउ किस तक आपने पढ़ लिया, बुक को बंद कर दीजिए, एंड नाउ
ask question to yourself कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, या फिर just try and remember कि आपको क्या क्या चीजें याद है, and finally revise. So SQRC could also be a good learning technology or a good learning method. Now, I hope you have somewhere saw this pyramid, right? How many of you have saw this pyramid before? This is called as a learning pyramid. Maybe if anyone from the teaching background, they must have been known this. Anyone having any idea No about sir, this? we have done B.Ed बस, फिर भी नहीं देखा था ये, first time देख रहे हैं. Ma'am, come on, you don't tell this to me. This is all like, you should be knowing all these things. Okay, no problem at all. But yeah, so अब बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि what would be a simply अगर आपको बताना है कि किस तरीके से चीजें होती हैं, तो देखिए, if you only listen like जैसे अगर मैं अभी आपसे इंटरेक्शन ना करूं, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद में आपको बस 5% चीजें याद रहेंगी. अगर आपने सिर्फ खुद से पढ़ा है, आपको 10% चीजें याद रहेंगी. अगर आपने सुना, आपने देखा, जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आपको 20% चीजें याद रहेंगी. आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, आपको 30% चीजें याद रहेंगी. अगर आपने डिस्कशन किया, आपको 50% चीजें याद रहेंगी. अगर आपने प्रैक्टिस की कि भाई जो हमने सीखा है, चलो उसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि रियलिटी में उसकी चीजें क्या है, यू विल लर्न 75% चीजें. एंड फाइनली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कि इफ यू टीच समवन, then obviously you're going to learn the things in a 90%, because while teaching you are actually teaching yourself. And obviously यहाँ पे slash self teaching is also have put, like if you are not finding anyone to teach, or if you're afraid to teach, you can also self teach yourself, where you can just keep a mirror in front of yourself and you can just recite what you have learned so far, and then you can improvise. Okay. So this is the one thing. Now, okay, now before coming to this, I wanted to know, like, how many of you know about this Pomodoro technique? Hello, hope I'm audible. Yes, you're audible. No, we don't know. Okay, no problem at not knowing. Like we all are here to learn only. Okay, like I hope these things will be interesting for you to learn. Okay, so these are just an overview, obviously, because we can't cover all of this in this thing. So this is one of the study techniques. Now I'll tell you about the Zeigarnik effect. I told you, right? I'll come up with the scientific theories. The Zeigarnik effect is what saying that our mind can't focus for more than particular time. Depends upon individual and depends upon how they train their mind. Like I won't be like मैं अपनी खुद तारीफ नहीं करूँगा, but using the particular techniques and all, like when we used to do the research in our particular topics, now we used to extend till 16 to 17 hours of productivity. Like UPSC aspirants को भी आपने देखा होगा, they used to extend their productivity to 16 or 17 hours, or even the workaholic CEOs used to extend the productivity to 16 to 17 hours. But all of the productivity depends upon how you exactly take the rest in between. So the Zeigarnik, I also told the same, that if you wanted to increase your productivity, make sure you include the, what you can say, make sure you include the rest in your strategy or your planning. Because people actually what, even while doing the planning or you putting the timetable, they put, okay, पहले इस चीज को खत्म करना है, next इस चीज को खत्म करना है, फिर इस चीज को खत्म करना है, then done. But they forget that they are human and they require, their mind also required a rest. Now we'll be coming to the Pomodoro technique, which is Francisco Cirillo, which is an Italian person who, and the Pomodoro is also an Italian word, which is a simple, what you can say, a synonym for a tomato. Pomodoro is a tomato in Italian. Actually, that's a different story which we cover, why exactly it's called as Pomodoro technique. But for time being, just remember there is a technique called as Pomodoro technique, which I'll explain to you in the next slide, how exactly you have to utilize it to enhance your productivity and to enhance your what you can say, focus time. Okay. There is one app also which will be helping you to track your productivity using the Pomodoro technique. It's called as Clockwork Tomato. You can download and use it from Play Store. Okay.
Parkinson law, I think it will take time to explain. We won't go into that. Okay. So if we talk about the Pomodoro technique, what all you have to do, first choose a task to work on. Okay. Now in 10 minutes, we'll wind it up, 10 or 15 minutes maximum. Choose a task to work on, then set a timer for 25 minutes. Okay. If you are new to this field, what you have to do, just set a timer for 25 minutes, work on the task until timer ends. I'm not telling you to work on the task till the task ends. What I'm telling you, work on the task until timer ends. Once the 25 minutes timer ends, stop it out. Take a 5 minutes of break, no matter what. Take a 5 minutes of break. In break, do any physical work, listen to your music, talk with someone, and do whatever you wanted to do. But come back after 5 minutes, and what you have to do, 1, 2, 3, 4. The 4 steps, you have to repeat it 4 times. Okay, so it's like kitne minutes ho gaye, it's like for 2 hours you have to do that. So 4 cycles you have to do, and then you have to understand. Okay, once you have to once you saw yourself, okay, if I have done the 4 cycles, it's fine. If not, then repeat the cycle and done these 4 cycles. Once you see yourself, okay, I have completed 4 cycles, then take 15 to 30 minutes of long break so that your mind will get relaxed. Okay, you understood, right? Now, once you started doing this, you'll be at a 25 minutes of productivity or in a one span. Now you'll be like, sir, yaar, isse to hamare 20 minutes waste ho jayenge. Because for 5 minutes we're taking break. But now you're not understanding. You're getting are almost like what we can say 25 ki 4 excellent, focused, oriented, or to the point. What you can say, focused sessions to work on. And once you started learning this, you'll enjoy this. Like currently, what I am also doing now, I'll set a timer for 1 hour 10 minutes. And once I'll get the timer done for 1 hour 10 minutes, I'll take a break for 10 minutes, and then I'll again repeat the cycle. And in that way, I'll complete my work. So similarly, based upon your potential or based upon your level of staying focused, you can increase or decrease the what you can say, the timer limit. So that's the way you can use that. And similarly, there are a few points to remember. Remember that procrastination is fine. Okay. Laziness, बोलते ना कि थोड़ा सा बाद में करूँगा, it's fine. But what is not fine is that to staying in that loop. क्या बार बार उसी चीज को कर रहे हो, बार बार उसी चीज को डिले कर रहे हो. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए what you have to do, start with 2 minutes और 15-minute rule. कि हाँ बस खुद के माइंड को ये बोले, it's all about mindset. कि बस मुझे 2 मिनट पढ़ना है, फिर बस मुझे 15 मिनट पढ़ना है, या फिर 15 मिनट काम करना है. Once you get into that loop, now your mind knows कि my person और जैसा हम बोलते हैं ना कि मेरा मालिक मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा अपना माइंड कहता है. And once he understood that, he knows that कि मुझे काम करना ही पड़ेगा. Okay, so that would be one thing. Then when it coming to the sources of studies, stick to the single source. अगर आपको डाउट है, then you only use the another source. मालूम पड़ा इस ऑथर को भी पढ़ रहे, उस ऑथर को भी पढ़ रहे, then that would be really jumbling. Okay, then make impression on your books. पेंसिल से लाइन मारते रहिए ताकि जब आप वापस आए तो योर माइंड विल नो कि ओके यस, दिस वाज माय वर्क एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि नाउ आई कैन आल्सो रिवाइज द थिंग. यूज अ टेबल चेयर अरेंजमेंट, स्टे हाइड्रेटेड, and use your word, use your space for the focus principles. Now you can even use the pictorial mind maps. I'll show you how exactly it looks like. Few more, if we talk about few more memory techniques, is like जैसे मैंने पहले भी बताया कि concept sources facts को हमको different तरीके से रखना है. अगर concepts है जैसे laws and logical things है, then we have to understand them. Facts is a fixed definition, values है, just mug the things up. Then again mnemonics techniques है, acronyms है, acrostics है उसमें कि अगर acronyms है, make word from sentences. जैसे BOMAS है ना, bracket, off, multiplication, addition, subtraction. Acrostics उसका उल्टा, make another sentence from the start of a sentence. क्या हम लोग जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और बाकी सारे अपने भी जितने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है उसको हम कैसे माय वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाइफ पाइस. हर एक स्टार्टिंग वर्ड ये अपना व्हाट यू कैन से प्लैनेट है. नाउ देयर आर मेनी वेज पीपल से कि वी डोंट रिमेंबर द थिंग्स. तो आपको रिमेंबर थिंग्स के लिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट अगर है देन कंसेप्ट के लिए यू हैव टू मेक द माइंड मैप्स.
or agar facts hai, then for facts you have to use the revision cards. For revision cards, how exactly you can do? You have to keep the cards of handwritten facts with you, keep in your pockets, and keep on reading it whenever you find time. Okay. Then similar the things you can do. Okay. So these are few examples by which how exactly you can do the mind mapping. Like you can see sports का mind map किया हुआ है उसको कि सेंट्रल में स्पोर्ट्स है, देन किस तरीके से स्पोर्ट्स हो सकते हैं, देन हर एक के अपने अपने स्पोर्ट्स में अलग अलग कैटेगरीज किस तरीके से किए गए हैं. तो सिमिलर वेज यू कैन क्रिएट द माइंड मैप इंटरेस्टिंग वे कि आपको किस तरीके से करना है. लाइक इवन actually this is like taking a lot of it will take a lot of time to explain you in detail कि आपको even हर एक लाइन को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके कलर किस चीज के लिए यूज करना है, how exactly you can customize the things and all those. उसके लिए it will take time, but as they say कि with practice you'll learn a lot of things. Okay, like here again depends upon the topic, you have to decide कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, and all those things. Now there is one thing which is I always get to ask कि sir पढ़ते हैं लेकिन चीजें याद नहीं रहती, right? You also must be facing this issue, right? और आपका ऐसा है कि आप पढ़ते हैं और सारी चीजें याद रह जाती है. How is it? रह जाती है आपको याद, और am I the only one who forgets the things? How is it? Like do you remember everything जो भी आपने पढ़ा है, या फिर जो भी आपने कभी किसी चीज पर काम करने का सोचा है तो सारी चीज आपको याद रह जाती है? नहीं. No, sir. Okay, so वो actually कोई issue नहीं है. It's like our mind has been built for that, because even in start only I told you our mind is super productive thing, और एक टाइम पर वो कई सारी चीजों पर काम करते रहता है. So he won't be able to decide कि किस तरीके से चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं कि किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है और किन चीजों पर फोकस करना है. एक्चुअली व्हाट वी डू ना, अगर टाइम होता तो आई कुड हैव टीच यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन डिसाइड अ पैटर्न, अ रिवाइजिंग पैटर्न, कि कितने टाइम के बाद में किस चीज को रिवाइज करना है, सो दैट आपके माइंड को पता हो कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका माइंड आपको समझा सके कि इन चीजों को आपको कितने टाइम तक याद रखना है. There is a scientific approach and there is a scientific way by which you can do all those things, but it will take time, and today we are not having that much of time, so today I'll tell you only the brief about it. So why you forget the things is called as the leaking bucket method. So whatever we study today will actually forget almost 82% by tomorrow, and this is not been said by me. It's just as it's from the German psychologist Hermann Ebbinghaus, which said कि आज आप कुछ भी पढ़ते हो तो आप नेक्स्ट दिन 82% भूल जाओगे. So this is the hand-made graph by myself only. So let's say if you have started the productivity at 75% of your brain capacity and you keep on reading, आपको मजा आने लगा और आप 10% में आप फील कर रहे हो कि yes I'm energetic और मुझे सारी चीज समझ में आ रही है, तो आपने पूरी चीजें पढ़ ली. अब पढ़ने के बाद में 10 मिनट बाद आप देखोगे कि आपको लगेगा हाँ यार मुझे सारी चीजें समझ में आ गई है, yes I'm pretty confident. और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप सो गए, आपने आपकी बाकी की सारी चीजें कर ली, आपके दिमाग ने और सारे डिस्ट्रैक्शंस में अपने आप को वेस्ट कर लिया, तो नेक्स्ट डे सिर्फ आपको 18% चीजें रहेंगी. उसके बाद में ये slowly डिक्रीज होते जाएगी, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल कंप्लीटली फॉरगेट, यू विल ओनली रिमेंबर द नेम ऑफ अ कांसेप्ट. सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली आवर माइंड वर्क्स. एंड इन ऑर्डर टू, अब आप बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि you have to design a revision pattern. In what pattern we have to revise a certain thing so that they can be मतलब अपने दिमाग में ज्यादा टाइम तक वो स्टोर रह सके. So that actually depends upon individual. तो actually हम लोग भी वर्कशॉप में वही करते हैं कि इंडिविजुअल काउंसलिंग के थ्रू you have to decide कि आप किस तरीके से चीजों को समझते हैं, आपके समझने का तरीका, आपके अंडरस्टैंडिंग का तरीका, मतलब समझने का ही तरीका, आपकी चीजों को याद करने का तरीका, आपकी चीजों को याद रखने की कैपेसिटी, और आपकी चीजों को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी के ऊपर से यू हैव टू डिजाइन अ कोड. वी कॉल इट अ कोड ऑफ अ रिवीजन. तो उस तरीके से यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स. सो दैट्स अ डिफरेंट वे बाय व्हिच यू कैन डिसाइड. एंड देयर आर फ्यू मोर टिप्स आई कैन गिव इट टू यू. I think today there is a lot of content you are getting, and I hope you're not मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है, and we can still continue. There is anything 1 or 2 slides only pending. So it's called as a 5 scale method.
आपको अगर कुछ करना है, नया सीखना है किसी तरीके से, so it will be actually helpful for competitive exam aspirants. The very first thing is that by heart the syllabus. लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या चीजें कवर करनी है. द वेरी फर्स्ट थिंग, बाय हार्ट द सिलेबस. यू शुड नो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है. सेकेंड, क्लियर योर प्री रिक्विजिट्स. कि आप अगर स्टैंडर्ड 9th में हैं, देन यू शुड बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ स्टैंडर्ड 8. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. मतलब हम लोग बोलते हैं कि अगर आप आगे जा रहे हो तो आपको पीछे की सारी चीजें याद होनी चाहिए या फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. थर्ड थिंग, माइक्रो और फॉर्मूला नोट्स. पीपल एक्चुअली व्हाट बिलीव ना कि शॉर्ट नोट्स निकाल लेंगे, बट पीपल फॉरगेट द माइक्रो नोट्स. मतलब इस पर एक्चुअली डेडिकेटेड वेबिनार्स देता हूं मैं कि व्हाई एग्जैक्टली द माइक्रो नोट्स आर इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब आपको रिवाइज करना है ना, तब आप पूरा बुक लेकर नहीं बैठ सकते या फिर इवन आप शॉर्ट्स नोट्स लेकर नहीं बैठ सकते. यू हैव टू बी रियली focused and understandable that what would be the things which you will be going to revise, and that would has to be मतलब 2 पेज में पूरा सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. That level of a crisp and to the point thing has to be done into the micro notes. Then obviously you have to focus on previous year questions, no matter whether you are preparing for the academics exam or whether you are preparing for competitive exams. You have to focus on previous year questions. And last thing, revise. Give a test series, analyze and repeat. Once you do that, you're good to go. So how is it? We have divided the whole competitive exam thing into 3 things. One third would be the study. Like you have to understand, you have to practice and all those things. Second, you have to revise the things, because revision, I told you, if you don't revise, but revise in a way that your mind will tell you. Okay, you have to decide. वो कोड आपको बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, वरना नहीं होगी चीजें. क्योंकि ये जो हाई एंड की कोचिंग है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि व्हाट दे टीच देम एक्चुअली फ्रॉम बेसिक्स, कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. एंड लास्ट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, बिकॉज़ विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो सक्सेस. एंड लास्ट थिंग, आई थिंक सेकंड लास्ट ओनली, सो पैरेटो प्रिंसिपल इज आल्सो वन थिंग व्हिच टेल्स यू अबाउट, यू मस्ट हैव, मतलब बहुत बार क्या होता है ना, एग्जामिनर आल्सो सेट अ सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक्स इन व्हिच लाइक 20% of the content contains the 80% of the marks. मतलब 20% व्हाट यू कैन से पोर्शन में से 80% चीजें आ जाती है, क्योंकि उसी का इम्पैक्ट, उसी के एप्लीकेशन बाकी चीजों पर होते हैं. इससे बहुत बार जब मुझे लोग पूछते हैं कि सर टाइम कम है और पढ़ाई ज्यादा करनी है, व्हाट शुड आई डू, आई विल बी लाइक फोकस ऑन दोस 20%. But for that, you have to understand all those things. First, you have to understand the syllabus, you have to understand the concepts and all. So it all matters. I think this would be the last thing. Okay, so here actually what we, this is another overview of what we do. It's like, this is a bell curve. Like how many of you know that how exactly the examiner set the exam papers? Like I think few teachers are also there, right? So this, they must be knowing about this bell curve, like how exactly the question paper has been set and how exactly the students should solve the question papers, right? Are you aware about this bell curve? Yes, sir. Okay, good. So I'll just revise it for those who don't know about it, because it might be really helpful for them. And yeah, as I think ma'am is from the teaching background, so she might not want you to know this, because this might be their little secret to keep students away out of all these things. But I'll tell you, I won't go in much details because it has much more details than what we can cover in the short time. So जब भी एग्जामिनर को कहा जाता है कि आपको किस तरीके से एग्जाम पेपर को सेट करना है, और बच्चे का भी माइंडसेट उस तरीके से होना चाहिए कि एग्जामिनर ने किस तरीके से सेट किया है, मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है. So 10% क्वेश्चंस ऐसे कहे जाते हैं कि 10% क्वेश्चन हैज टू बी प्रीटी सिंपल, then 15% questions has to be easy, and 50% questions has to be average, क्योंकि they also want कि maximum people should get pass, right? Then 15% has to be moderately hard, which would be solved by the people or the students which have actually worked hard and like they have really put the efforts. And the 10% has to be hard one, so that only that will be actually what you can say, the deciding factor. Okay, yes, like these are the deciding percentage. Like हम बहुत बार बोलते हैं ना कि कट ऑफ से रह गया, कि यस यार कट ऑफ नहीं हो पाएगा क्लियर, या फिर
मेरा हो जाता अगर मेरे पास 2 मार्क्स एक्स्ट्रा होते. So that 2 marks comes under that 10% hard. So that's the way they decide the paper. And in the opposite way, like if you have like you can see the arrow, right? You have to decide the question and then you have to follow that along the, or you can say, time, how exactly you have to solve the question paper. Like first, people, what students do usually, either they start immediately after getting the question paper, they immediately start solving the question paper, or they simply first or you can say go through the question paper and they started from the simple one, and then they'll be like, okay, ab simple ho gaya, ab jo bacha hai wo karenge. But then instead of that, what you have to do, you have to categorize all of the question paper into these 5 categories, and then you have to start solving this one by one by one, and then we'll see a little getting confidence on all those things. Okay, so yeah, I think that's all from my end. And if you have any question, you can ask, because in this little time, I think this much only I'll be able to cover. There are many more things to share, but this is the little crunch of a time. But I hope that would be really helpful for you. This is my mobile number. The first one is on a WhatsApp. You can contact, and I'd be ready to guide or help you in any possible way. बताइए, अगर कोई आपका question है, we can have the question now. Or any feedback, if you like, if you don't like, I don't know. Can you recommend any kind of book or something which we can read to understand these things? What you taught, whatever you actually, there are many things, sir. Like there is one thing called as a psychology, like a mind psychology. There is one thing called as a mind psychology that you can also learn. Instead of that, now what I would suggest you is that you can take those particular topics which I have told them, and then you can learn about those particular topics from YouTube, you could say, or then you can find the particular articles. If you wanted to learn the things in a detail, that would be a good option. Because there is no particular book which can cover all of those things, because there are many scientific approaches behind these things, and these are just overviews. Like there are many things which we can talk about when it comes to the smart studies. So this is, you could say, just 30% of what we can tell. Now I think we got few questions into the chat. How much lectures required to teach all these to our team? Aisan sir is asking. Maybe one day, half day, 3 to 5 hours would be there for smart studies, and for creativity, maybe another 3 to 5 hours. But depends. Sir, you will please mail the things. Yes, we will try. Sir, you successfully ignite curiosity in audience here to think out of the box. Appreciate it. Thank you so much. And yes, if Aisan sir is ready, we are also ready. We will look into that, and I hope the content would be really helpful for you and you find it worth, right? क्या लगता है आपको? आपके 1.5 घंटे जाया तो नहीं गए, right? No, it's useful. Okay. Glad to know. मौसम सर बहुत शुक्रिया. एक्चुअली मैं कनेक्ट नहीं कर पाया पूरे सेशन में, क्योंकि अभी तक मैं घर नहीं पहुंच पाया हूं. लेकिन I need you to give complete details about all these things. Yeah, sure. No problem, sir. We'll surely connect and we'll surely give you the details. Yes, we'll talk after the call. Actually, your voice is audience is still not clear, still disconnecting because of the traveling. But yeah, we actually have a lovely audience, and it was really great to connect with you all. Again, thank you so much. So if we are not having any question, we can wind up the session, because अभी तक खाना नहीं खाया और खाना पड़ेगा जाके. I'm little hungry now. चलिए. Thank you so much all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I appreciate the work. Thank you.